Okay, so today we are going to learn about Lord Alfred Tennyson's poem Break, Break, Break. Okay, so we can go some biography of Lord Tennyson. Later on, we can see the explanation of the poem Break, Break, Break. Okay, so let's have some biography of Lord Tennyson. Basically, Lord Tennyson is a Victorian poet. Okay, he is a Victorian poet. He is called as Victorian poet. So, do you know the literary period, Victorian period? It ranges from 1837 to 1901. This period is called as Victorian period. In literature, it is called as Victorian period. So, we can have some characteristics of Victorian period also in this one. Okay. So, before going to Tennyson's biography, we can have some idea of Victorian literature, or you can say Victorian poetry. Just like in the last classes, we had discussed some salient or characteristic features of Romantic period. Okay, so we saw in Romantic period emotions, imagination, love with the nature, love with glorification of nature, love with society, then emotive language. So many other features were there. Same here also, if you see here, basically Tennyson was born in 1809. Okay, to 1892. Okay, 92. 1892. So he lived a long time, long life. In that, if you see here, Romantic period. Okay, it is from 1798 to 1837. So he was in between. So most of his writing ranges in Victorian period. Victorian period is named after Queen Victoria. महारानी विक्टोरिया जो थी उनके नाम पर उनके शासनकाल के समय को एक्चुअल में 1837 में विक्टोरिया रानी बनी. ठीक है, ये उनका बर्थ डेट नहीं है, बर्थ ईयर नहीं है 1837. ये उस साल उन्होंने रानी बनी उस साल है, और बहुत लंबा शासन रहा 1901 तक, टिल हर डेथ. ओके, एंड इन हिस्ट्री इफ यू सी, Queen Victoria never came to India, but she ruled there from England, and in India so many places have been named after her name. Okay, if you go in Kolkata, earlier it was called as Calcutta, there you find it Victoria Bhavan and Victoria Garden, so big garden. If you go to Bombay, there was a station, its name was as VT, Victoria Terminal, the name of Victoria. At present it is changed. It is, I think, Chhatrapati Shivaji Terminal, CSST, like that. Okay. So she never came to India, but her influence was there. So we have some features about Victorian period here. Then we will go for biography of Tennyson. Then after that we can go for poem. So you can note down few features. If you see, these writers have the influence, or early Victorian period writers had the influence of the previous Romantic periods, like John Keats or Wordsworth. So in other words, you can say Tennyson belonged to third generation of Romantic period. Third generation of Romantic period, or before Victorian period, he started writing various things of Victorian era. So Victorian period is marked for Industrial Revolution characteristics. Okay, characteristics. First is Industrial Revolution or industrialization. Victorian period is marked for expansion of industries, or you can say industrialization. So if you think, since the industrialization is there, that industries need workers. Okay,
So people started moving from village life to city life, and the capitalists, or you can say the company owners, started exploiting or taking more works from those laborers in lieu of giving less money. Okay, so here industrial revolution was there, or you can say industrialization was there. So one theme subject or one theme of these writers became as industrial workers, or you can say the exploitation of middle class families. Then middle class issues, of course, in poetry you will find it is lesser, but in novels you will find more, because in this era novel was on high rise. Then spirituality, then feminism, or you can say feministic issues, means issues of females. Earlier very less rights were given to females, but in this era it became a prominent issue for various writers to raise the voices of women for their rights. Okay, the most and important characteristic became religious doubts and disbeliefs. Religious doubts and disbeliefs means लोगों, basically in 1859 one book came into market by Charles Darwin. The book name is The Origin of Species. Origin of Species. In high school inter also you may have heard this book, Origin of Species. Yeah, 10th में. Okay, so he claimed the existence of God. Basically he said that if we can have one cell, we can create any kind of creature, we can make any number of living animals and living things, you can say. So he claimed, or he disbelieved the existence of God. So there created a doubt about the religious beliefs. So it became major issue of Victorian era. In Victorian period, another term came into existence that is called as Victorian conflict. Okay, Victorian conflict. Victorian conflict एक टर्म आया, वो टर्म यही था, देयर वाज बेसिकली ये दो चीजों को लेकर के था. एक तो साइंस वर्सेस रिलीजन, बिकॉज साइंटिफिक ग्रोथ वाज देयर एंड एवरीथिंग वाज प्रूव्ड or checked through the eyes of science. What is science basically? Science is a branch of history which can revalue or recheck the issues. Okay, so by experimentation or by experiments you can recheck, but in other matters it is not possible to recheck. So science challenged everything, and thereby the beliefs of churches started shaking. मीन्स लोगों का जो चर्चेज में विश्वास था वो धीरे धीरे हिलने लगा, और बहुत परेशान हो गए लोग कि वेदर आई शुड फॉलो द थॉट्स ऑफ साइंस और थॉट्स ऑफ रिलीजियस बुक्स, और यू कैन से. सो people were much confused. Our next poem is there, Dover Beach by Matthew Arnold, that is also talking about the same thing. Okay, it is in your syllabus also. So one term came into existence that is called as Victorian conflict. It was conflict between science and religion. People were much confused whether they should follow to science or they should follow to religion. Okay, still if you logically think, still you may get confused. So this conflict was much there during Victorian era. Later on it was solved by a meeting, you can say, or by discussion of the both groups. Means some science people were there, means scientists or science followers, and other religious preachers or gurus. Then they sit together and discussed everything. And at that time it was
told that let the people be free, and it is the wish or it is the freedom of the public whether they should follow more to science or more to religion. Means जो विक्टोरियन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था उसका सोल्यूशन कैसे निकला, दोनों मतलब गुरुज जो बैठे साइंस के अलग से और रिलीजन के अलग से, दोनों की मीटिंग होती है बहुत पब्लिकली, और उसमें निर्णय लिया जाता है कि जिसको जो मानना हो, जितना मानना हो, कोई एक दूसरे पे दबाव नहीं बनाएगा। ठीक है, रिलीजन ये नहीं कहेगा नहीं आपको ये इसी तरीके से मानना है, और नहीं साइंस कहेगा कि नहीं आप रिलीजन को मत मानो, केवल साइंस को मानो। मतलब उसमें कह दिया कि दोनों की चॉइस है इंडिविजुअल की, अपने हिसाब से चाहे जो जिसको जितना माने, और इस तरह से समस्या सॉल्व होती है। लगभग इसको सॉल्व होने में ये जो विक्टोरियन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था 1859 के बाद स्टार्ट हुआ था, क्योंकि 1859 वो बुक आई थी। ठीक है, साल होते होते लगभग 70s हो गया, लगभग 15-20 साल लग गए साल होने में इसको। तो उसको कहा गया विक्टोरियन कंप्रोमाइज। ठीक है, विक्टोरियन कंप्रोमाइज, उस टर्म को कहा गया विक्टोरियन कंप्रोमाइज। सो ये इशू जो था विक्टोरियन कॉन्फ्लिक्ट और विक्टोरियन कंप्रोमाइज, इट कम्स अंडर योर रिलीजियस डाउट्स एंड बिलीफ्स। ओके, रिलीजियसली आई शुड बिलीव हाउ मच, कितना बिलीव करना चाहिए, क्या है, कैसे, सारे इशू इसमें रहा। तो जो ये पीरियड था ये बड़ा इंटेलेक्चुअल पीरियड रहा है, इसमें काफी डिस्कशन चले यूरोप में, और इसका इम्पैक्ट लिटरेचर पे भी रहा, बहुत सारे बुक्स लिखे गए हैं इसको लेकर के। देन फेमिनिज्म, ठीक है, फॉर द राइट्स ऑफ वीमेन many writers raised the questions. Even Tennyson has also wrote one book that is The Princess. In that he had educated for the education of women. औरतों के एजुकेशन के लिए उन्होंने उसमें डिबेट किया है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे। Then so many political problems were there and its impact on capitalism. You can say political issues. Political issues, capitalism, then social evils. जो social evils थे, ठीक है, in so many novels you find that issues were raised about the child labor. चाइल्ड लेबर को लेकर के बहुत ज़्यादा जो फैक्ट्रीज वगैरह काम हो रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा इन सब के ऊपर वर्क किया जा रहा था। देन मोरालिटी के ऊपर हुआ काम इसमें। देन आइडियलाइजेशन ऑफ वीमेन, idealization of women. Idealization of women means in this period basically the Victorian lady, one term is there, Victorian lady, in which it is considered that a Victorian woman should be good educated, having good physique, good brain, good dress up, good qualities, homely qualities you can say. So one idealistic woman. So Victorian era is marked for idealization of women. If you remember, in the last year we had discussed one essay written by Virginia Woolf. Okay, one chapter was there. In that one, it is talking about one poem. Yeah, Angel in the House. In that it was considered that you have to behave. That was basically in 4 parts. One before marriage, then after marriage, then duties of a woman in society and duties of a woman with husband, and in family, so many other issues were there. So that was made for idealization of a woman. कि एक औरत को कैसे आइडियल बनाना है, आदर्शवादी इस तरीके से लेकर के उसमें इश्यूज को डिस्कस किया गया था। तो जो विक्टोरियन एरा था, इट इज आल्सो मार्क्ड फॉर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज आइडियलाइजेशन ऑफ वीमेन। ऑफ कोर्स you cannot find every characteristic in each poem. Okay, if you go for break, you will not find all the qualities. But if you go through all the poems of Tennyson, then certainly you will find all the issues. Okay, so idealization of women is there one major characteristic of Victorian era. Then expansion of territory. Basically, in these issues, heroism was shown. Heroism means most of the writers started writing so many mythical characters
who had gone for any heroic adventure. Like Tennyson has also wrote one book that is called as Ulysses. Ulysses, heroism, or his poem Ulysses. One book is there, poem is there, basically Ulysses. इसमें एक यूलिसस एक कैरेक्टर, एक ग्रीक कैरेक्टर है जो बाहर एक यात्रा पर जाता है, एडवेंचरस यात्रा पे जाता है, जहाँ के 20 सालों तक रहते रहते वहाँ इतना उसको अच्छा लगता है, इतना मेहनत करता है वहाँ पे कि जब वो घर अपने आता है यात्रा पूरी करके तो कुछ ही दिन बाद उसके घर पे मन उब जाता है, उसको लगता है कुछ काम ही नहीं है, जिंदगी व्यर्थ जा रही है, और वो फिर घर से वापस चला जाता है फिर कार्य के लिए। ठीक है, ये शो करने की कोशिश की गई थ्रू दिस पोएम दैट people of Europe or people of England are more adventure oriented, oriented means they like to go on adventures. And if you see in Victorian era, they had controlled more than 60 countries at that time. मतलब 60 देशों से ज़्यादा देशों को उन्होंने गुलाम बनाया था। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम सुना? कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल, उसका क्या मतलब होता है? एक ओलंपिक भी नाम सुना होगा, तो दोनों में कोई अंतर है? दोनों एक ही है। यस, जितने ब्रिटेन की कॉलोनी थी, कॉलोनी का मतलब ब्रिटेन ने जिन जिन देशों को गुलाम बनाया था उनका एक ग्रुप है, उस ग्रुप को कहा गया कॉमनवेल्थ। क्यों? क्योंकि कोई पत्र आदेशित करना है, अब 60 देशों का नाम कहाँ लिखेंगे? तो सीधे टू ऑल कॉमनवेल्थ कंट्रीज। ठीक, यानी राजा ने हेडिंग डाल दिया टू ऑल कॉमनवेल्थ कंट्रीज, और जो मैसेज है नीचे साइन कर दिया, यानी वो मैसेज सीधे 60 देशों में चला गया एक साथ। तो उनका जो ग्रुप बनाया गया उसको राष्ट्रमंडल हिंदी में कहते हैं, या इंग्लिश में कॉमनवेल्थ। तो जब इन देशों का कोई स्पोर्ट्स होता है तो उसको कहा जाता है कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, और जो ओलंपिक है वो पूरे वर्ल्ड का है। ठीक है, जो भी देश पार्टिसिपेट करना चाहता है वो अपना क्वालिफिकेशन रखता है तो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इस तरीके से एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी, जो इनका जो रेंट टेरिटरी है, मतलब राज्य करने का जो टेरिटरी, वो बहुत बढ़ गया लगभग ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, अमेरिका में भी था, अमेरिका भी गुलाम था, पता ही है ना। अमेरिका कब आजाद हुआ? अरे 4 जुलाई 1776। ओके, then other features like manners, morals, and issues of middle class were also discussed. So these are various features or characteristics of Victorian era, in which you find more, like it is talking about the issues of middle class, then spirituality, feminism, then religious doubts and disbeliefs. Okay, it is more basically. Victorian is marked for Victorian conflict, in which there was a conflict between science and religion, and another conflict was between capitalist and लेबर क्लास। कैपिटलिस्ट और लेबर क्लास के बीच में था। पहले क्या था, जो कंपनियां थी, जो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ उसमें जो जो कंपनी इंडस्ट्रीज लगा रही थी बड़े बड़े, वो लेबर के राइट्स को सुरक्षित नहीं रख रहे थे। मतलब लेबर का कोई राइट नहीं है। जैसे आप यहाँ काम कर रहा है कंपनी में, मशीन में हाथ कट गया, अगले दिन बोल देगा आपको आना नहीं है। ठीक है, उसके ना दवा का पैसा, ना उसके घर की कोई सुरक्षा, कि हाँ उसके बच्चे कैसे खाएंगे, क्या होगा, कोई चीज़ नहीं दिया जाता था। ये सारा चीज़ स्टार्ट हुआ इसी पीरियड में। और 1832 और 33 में एक लेबर लॉ पास हुआ था। ठीक है, सेकंड लेबर लॉ एक्ट कहते हैं उसको। लेकिन वो उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है विक्टोरियन पीरियड में अच्छे से। इसीलिए विक्टोरियन पीरियड में जो मिडिल क्लास इशूज को रेस किया गया, और ये चीज इशू प्रोटेक्ट की गई, लीगली प्रोटेक्ट किया गया कि हाँ जो अगर कोई लेबर काम कर रहा है किसी के यहाँ तो उसकी कुछ राइट्स होंगे। पहले मनमाना घंटे चलते थे, 16-16 घंटे 18-18 घंटे काम कराए जाते थे और पैसा उतने दिए जा रहा है। मतलब सीधे ऐसे जैसे बड़ी सी कंपनी की बाउंड्री वाले उसमें डाल दिया गया, अब आप काम करो, खाओ, जब नींद लगे सो जाओ, फिर उठो फिर काम करो, ऐसे टाइप था। फ्रीडम नहीं थी। फिर ये राइट्स जब आया, एक्ट आया, तो इसमें बहुत सारे राइट्स लेबर्स को दिए गए, उनकी सुरक्षा का, उनके मेडिकल का, और जॉब छोड़ने पर कुछ सिक्योरिटी मनी, कुछ इस तरह के बहुत सारी चीज़ें एक्ट में आया।
तो बहुत ज्यादा उसमें मिडिल क्लास को प्रोटेक्शन मिला. दैट्स व्हाई दिस इज इट आल्सो रेजेस द इश्यूज ऑफ मिडिल क्लास. ओके, spirituality is there, basically belief in God and belief in the self, you can say, means to do the right things. That is called basically here spirituality. And the religious doubts and disbeliefs, it was also discussed under Victorian conflict and Victorian compromise. Okay, then so many social evils, it was also discussed. So these are various characteristics of Victorian period. I hope this much is clear. So let us have some background knowledge of Lord Tennyson. He is also called as first Baron. First Baron Tennyson. Baron means Lord. So sometimes he is also known as Lord Tennyson. Lord Alfred Tennyson. His name is Lord Alfred Tennyson. Okay. His father was George Tennyson. Mother Elizabeth Tennyson. Okay. This couple had 12 children. Okay. Out of 12, fourth is Alfred Tennyson. अल्फ्रेड टेनिसन, ये जो टेनिसन है इनका नाम है लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन. लॉर्ड एक उपाधि दी गई है, ठीक है, उसको जिसे बैरन कहते हैं. बैरन बेसिकली एक पोस्ट होता है, जैसे तालुकदार हिंदी में चलता था. एक एरिया का एक जो सबसे निम्नतम लेवल का जो अधिकारी होता था उसको बैरन कहते थे. बैरन तो चूंकि वो अधिकारी के बराबर होता था इसलिए उसको लॉर्ड कहा जाता था. आप देखेंगे अंग्रेजों में जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे, ठीक है, उनके नाम के पहले क्या लगता था? लॉर्ड. ठीक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड मैकाले. तो लॉर्ड का मतलब एक अधिकारी के लिए सम्मानजनक शब्द थे वहां पे. ठीक है. सो इनकी जो मदर थी, दे हैड 12 चिल्ड्रन. आउट ऑफ 12, फोर्थ वन इज अल्फ्रेड टेनिसन. बेसिकली हिज फादर वाज अ क्लेजी मैन. काफी पढ़े लिखे थे. क्लेजी मैन मीन्स a person who performs the religious activities at church and in Paris. पेरिस का मतलब होता है जो एक एरिया होता है. आप देखेंगे कि अब बहुत जगहों पे पुरोहित का एक अपना एरिया होता है कि वो इस गांव में या इस एरिया तक पूजा पाठ कराएगा, उसके बाद वाले के लिए दूसरा कोई व्यक्ति है. तो जहां तक वो एरिया मार्क रहेगा कि हाँ ये इतना सारा इस चर्च के अंतर्गत आता है, उसे पेरिस कहा जाता है. PARISH, पेरिस. ओके. सो ये क्लेर्जी मैन थे वहां पे. इसके बाद में रेक्टर बनते हैं, बेसिकली रेक्टर कहते हैं उसको. फिर वीकर बनते हैं. ये सारे पोस्ट है. सबसे छोटा पोस्ट होता है इनके में मंक. मंक का मतलब होता है जैसे एक चर्च के अंतर्गत मान लीजिए 8 मंक बना दिए गए. उनका काम होता है कि घर घर घूम घूम के जा लोगों को शिक्षित करना. ठीक है. और उनके पास अपना कोई ज्यादा धन नहीं रहता था. जो लोग देते थे उससे खाना खाते थे और उससे इस तरीके से चीजें बढ़ती रहती थी. उनका काम था वो धन इकट्ठा नहीं करना, उनको उसमें था. ठीक है. इस तरीके से ही वाज अ क्लर्जी मैन एंड मच एजुकेटेड. ठीक ठाक पैसा था. अपर मिडिल क्लास में बिलोंग करते थे. ठीक है. लैंड ओनर भी थे. सो ही हैड गुड मनी एंड ही वाज अ राइटर आल्सो, पोएट एंड राइटर, जो इनके फादर थे. मतलब फैमिली बहुत अच्छी थी, पैसे से भी अच्छी थी, दिमाग से भी अच्छी थी, एजुकेशन से भी. ठीक है. इनके इसके बाद बहुत सारे भाई बहन इनके पढ़े लिखे, जिसमें से 2 भाई इनके काफी अच्छे रहे राइटिंग में. एंड दीज 2 हैव कंट्रीब्यूटेड इन वन पोएम फॉर द फर्स्ट टाइम विद अल्फ्रेड. दीज आर फ्रेडरिक एंड चार्ल्स. ये दोनों भाई मिल करके अल्फ्रेड को हेल्प करते हैं यहाँ पे लिखने में. ओके. एंड ही पब्लिश्ड, अल्फ्रेड पब्लिश्ड वन पोएम इन 18 नहीं 18
27 I think. Okay, one book that is poems by two brothers. जिसमें से इनका एक भाई फ्रेडरिक इनका हेल्प करता है पोएम लिखने के लिए, और इस पोएम को लिख करके पब्लिश करते हैं, पोएम्स बाय टू ब्रदर्स। ओके, फिर इसके बाद बेसिक स्कूलिंग इनकी लोकल होता है एट लुइथ। ओके, यहाँ के ग्रामर स्कूल में इनका होता है किंग हेनरी सिक्स्थ ग्रामर स्कूल। उस स्कूल का नाम है किंग हेनरी सिक्स्थ। हेनरी बहुत सारे हैं ना, हाँ, तो उसमें जो है सिक्स्थ, मतलब आप ग्रामर स्कूल लिख लीजिए बस यहाँ, ठीक है, सिंपल, वैसे बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। यहाँ पे बेसिक एजुकेशन होता है। जो इम्पोर्टेंट है, जब हायर स्टडीज के लिए यहाँ से जाते हैं ट्रिनिटी कॉलेज। ओके, ट्रिनिटी कॉलेज लंदन, बेसिकली कैम्ब्रिज में है। ओके, कैम्ब्रिज, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। There he met with another friend, that is his name is, वहां पे एक फ्रेंड से मिलते हैं जिसका नाम है आर्थर हेनरी हालम। ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रख लीजिएगा, ये भी आएगा एमसीक्यू में, पक्का आएगा, ठीक है। ये इनका बहुत अच्छा दोस्त था, हु वाज आल्सो अ राइटर, जिसकी डेथ 22 साल की एज में हो जाती है, 22 ईयर्स की एज में डेथ हो जाती है। एंड ही वाज हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड। इनकी जो अल्फ्रेड टेनिसन की सबसे क्लोजेस्ट जो फ्रेंड है उसका नाम था आर्थर हेनरी हालम, AHH, ठीक है, आर्थर हेनरी हालम, ये नाम याद रख लीजिएगा। उसकी जब डेथ हो जाती है, ठीक है, उसकी मेमोरीज में इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं। एक पोएम जिसमें से है आपका ये वाला, जिसे हम पढ़ेंगे अभी, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ठीक है। दिस पोएम इज आल्सो एन एलिजी, इट इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर हेनरी हालम। सो एमसीक्यू विल बी देयर, और मान के चलिए 100% आएगा कि ब्रेक 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 पोएम किसकी डेथ पे लिखी गई है। इट इज इन द मेमोरी ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर हेनरी हालम। ओके, कई बार इसको शॉर्ट में हालम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कि हालम के डेथ पे। इसके अलावा इन्होंने एक और पोएम लिखी है इसी के ऊपर, इन मेमोरियम करके। इनकी वर्क्स में आप पढ़ेंगे तो इन मेमोरियम, इन मेमोरियम, इसका मतलब इन मेमोरी की याद में। तो वो पोएम भी इन्हीं को डेडिकेटेड है, हेनरी हालम को, ठीक है। तो ये पक्का आने वाला एमसीक्यू में आपको कि ब्रेक 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 पोएम किसकी डेथ के लिए लिखी गई है। तो ये चीज है आर्थर हेनरी हालम, ठीक है। बाकी इनकी शादी वादी हो जाती है, वैसे शादी जिससे होती है उसका नाम है एमिली सेलवुड। एक्चुअल में इनके एक भाई की जिससे शादी होती है, उसी की छोटी बहन से इनकी शादी हो जाती है। तो दोनों बहनें एक ही घर में, ठीक है। So, one more thing is important here. When he went to Trinity College, he wrote one poem. Okay, poem that is poems chiefly lyrical. उसका पोएम का नाम था poems, chiefly lyrical. For this poem, basically इस पोएम का नाम था टिम्बकटू। टिम्बकटू, TIMBUKTU, टिम्बकटू, हाँ टिम्बकटू। इस पोएम के लिए चांसलर का गोल्ड मेडल इनको मिला था अवार्ड में, जब ये ट्रिनिटी कॉलेज में थे। ओके, सो टेनिसन वाज अवार्डेड विथ चांसलर्स गोल्ड मेडल फॉर हिज पोएम टिम्बकटू, ठीक है। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे पोएम्स लिखे, बट ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चांसलर्स गोल्ड मेडल फॉर विच पोएम, दैट इज
Timbuktu. Okay, it was written in Trinity College. 29 में लिखा था इन्होंने, 1829. Yeah, one more thing here important is that he became poet laureate. पोएट लॉरेट, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं राष्ट्र कवि. ओके, पोएट लॉरेट. ये एक पोएट को एक तरह से कह सकते हैं, आप उसको दरबारी कवि हिंदी में कह सकते हैं, जिसका उद्देश्य होता था कि अगर जरूरत पड़े राज्य को तो उसके लिए कविताएं लिखना. मान लीजिए कोई विदेशी डेलीगेट आ रहा है, उसके स्वागत के लिए कुछ लिखना है, ठीक है, या उसके बारे में कुछ लिखना है, तो वो लिखने का काम इनको होता था, पोएट लॉरेट को. तो बहुत सारे राइटर रिफ्यूज कर देते थे, बहुत सारे बनते थे. इनसे पहले वर्ड्सवर्थ थे, विलियम वर्ड्सवर्थ, इनका नाम सुना ही है. ही वाज आल्सो पोएट लॉरेट. ठीक है, ये थे 1843 से लेकर के 50 तक, क्योंकि 50 में डेथ हो गई इनकी. ठीक है, तो 1843 से लेकर के 1850 तक पोएट लॉरेट थे वर्ड्सवर्थ. वर्ड्सवर्थ के बाद, ठीक है, एक पोएट और थे जिसका नाम है सैमुअल रोजर्स. ठीक, इनको ऑफर मिला पोएट लॉरेट बनने का, बट इन्होंने रिफ्यूज कर दिया. रिफ्यूज्ड. इसके बाद टेनिसन बनते हैं. ठीक है, टेनिसन बन गए कब? ये 1850 से लेकर के 1892 तक. ठीक है, यानी ही रिमेन्ड एज पोएट लॉरेट फॉर 42 ईयर्स. 1850 से लेकर के 1892, 1892 तक, यानी मृत्यु तक ये पोएट लॉरेट बने रहे. पोएट लॉरेट बनने में क्या होती थी, कुछ शर्तें होती थी राज्य की. राज्य की शर्तें क्या होती थी? जैसे वो चाहे वैसे लिखिए. ठीक है, कि मतलब अगर आप बोला कि नहीं आपको सराहना करनी है किसी पॉइंट पे, तो आपको करनी है, चाहे वो हो चाहे ना हो, या जैसा भी चाहे वो वैसा ही. बट इस चीज को ये रिफ्यूज, बहुत सारे राइटर रिफ्यूज करते गए. तो ये यहाँ पे बट टेंशन ने स्वीकार किया, हालांकि इस शर्त पे स्वीकार किया था कि हाँ हम वैसे ही लिखेंगे और हमारी पोएम्स को आप रिजेक्ट नहीं करेंगे. बहुत सारे होता क्या है कि राज्य में, ठीक है, इतना दबाव बना देते हैं कि पोएट की जो बहुत सारी पोएम्स पब्लिश नहीं होती हैं, या उसमें से बहुत सारी लाइनें कट कर दी जाती हैं, या उसको रिप्लेस कर दी जाती हैं. तो इन सब चीज़ों से इन्होंने अपने आप को वहाँ पे मुक्त किया. बोले नहीं, हमारी जो जैसे हम लिखेंगे वैसे ही रहेगी, तभी हम बनेंगे. तभी बने थे. ठीक है, सो ही बिकेम पोएट लॉरेट इन 1850 till his death in 1892. So for last 42 years he remained, and it is the highest period for any writer to remain as poet laureate. ठीक है, यानी लिटरेचर के इतिहास में सबसे लंबे समय तक अगर कोई पोएट लॉरेट था तो वो टेनिसन. ठीक है, ये एमसीक्यू आ सकता है आपके लिए कि हु एमंग द फॉलोइंग हैज रिमेन्ड फॉर लॉन्गेस्ट टाइम एज पोएट लॉरेट. ठीक है, पोएट लॉरेट के रूप में सबसे ज्यादा लंबे समय तक कौन रहा? तो किसका नाम आना चाहिए? टेनिसन. ठीक, 1850 में बने वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद. वर्ड्सवर्थ तो 7 ईयर्स तक थे, 43 से 50 तक. ठीक है, ओनली 7 ईयर्स. हालांकि जो बन जाता है राष्ट्र कवि, उसको कुछ पैसे मिलते हैं उनके रिटायरमेंट पे, और कुछ फंड्स मिलते हैं उनको, बहुत सारे राइट्स मिल जाते हैं, और एक राज्य के आदमी हो जाते हैं. तो मतलब बहुत सारी सुविधाएं, ये सब चीजें मिलती हैं उनको. ये सारी चीज यहाँ पे पोएट लॉरेट को मिलती थी. पेंशन भी मिलती थी जिसे कहते हैं. तो टेनिसन रिमेन्ड पोएट लॉरेट. सो यहाँ तक क्लियर? ओके, सो लेट्स सी फॉर द पोएम. 10 मिनट पोएम खत्म हो जाएगा. पोएम है ना? So let's see the next our poem, that is break break break. Okay, if you see here the word break break break, title is there. First try to understand the title of this poem. The poet laureate, or you can say the poet Alfred Tennyson, is so sad
are so sorrowful on the death of his friend Arthur Henry Hallam that it keeps reminding him that moment which he had passed with him. जो उनके साथ वो समय बिताया वो उनके बार बार याद आ रहा है. एट प्रेजेंट वो एक समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं, समुद्र की तरफ देख रहे हैं, और उनको देखने के बाद जनरली लोग समुद्र को कैसा फील करते हैं. आप समुद्र कभी जाते हैं देखने के लिए, ठीक, इंडिया में तो बड़ा फेमस है, उधर मुंबई में जुहू चौपाटी पता नहीं क्या क्या, ठीक है, लोग जाते हैं किस लिए, एक एंजॉयमेंट की फीलिंग लेने के लिए. मतलब समुद्र को वहां पे फील कैसे करते हैं, एक एक्साइटमेंट और एंजॉयमेंट के रूप में. बट जो राइटर हैं ये समुद्र किनारे बैठे हैं और इनको उसमें कोई चार्म नहीं फील हो रहा है उस समुद्र में, ना ही कुछ, ठीक है, बल्कि उस समुद्र को भी कह रहे हैं कि तुम भी मेरी तरह दुखी हो. और कैसे कह रहे हैं, ब्रेक ब्रेक ब्रेक. यहाँ पे ब्रेक का मतलब है जैसे किसी चीज को तोड़ने से है. जो समुद्र की लहरें आके दीवार पर टकरा रही हैं बार बार, मतलब दीवार का मतलब जो वहाँ किनारा है, ठीक है, तो जहाँ बैठे हैं वो थोड़ा पथरीला टाइप है, ऊंचाई पर है, तो उससे जो टकरा रही हैं लहरें, ठीक है, उसी को कह रहे हैं कि ब्रेक ब्रेक ब्रेक. 3 बार ब्रेक ब्रेक लिखने का मतलब बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं यहाँ पे समुद्र की लहरों को, कि तुम भी अपने, मतलब जैसे मैं दुखी हूँ वैसे तुम भी अपने सिर फोड़ फोड़ करके दुखी हो मेरे साथ, ठीक है. तो इस चीज को यहाँ पे लिखा गया है. यहाँ पे बेसिकली दिस पोएम इज हैविंग द टोन ऑफ सैडनेस, ठीक है, जो नॉस्टैल्जिक टोन है वो है, सी साइड इमेज है, और एक फीलिंग ऑफ लॉस इस पोएम में दिखाने की कोशिश की गई है. इट्स बेसिकली एलिजी. ओके, सो सी हियर, हाँ प्रॉपर मीटर वगैरह नहीं है सबका यहाँ पर है. ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, ओ समुद्र, ब्रेक 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 ऑन दाई, दाई मीन्स योर, कोल्ड ग्रे स्टोन्स. कोल्ड ग्रे स्टोन्स मतलब है कि जो समुद्र किनारे पत्थर पड़े हुए हैं, ठीक है, ग्रे कलर के जो पत्थर पड़े हैं उस पे ब्रेक ब्रेक ब्रेक, मतलब तुम भी अपने, हाँ, लहरों को इस पे टकराओ. And I would that my tongue could utter the thoughts that arise in me. कि काश ऐसा होता है कि हम भी उन चीजों को बोल पाते. I would मतलब I wish that my tongue could utter, कि मतलब मैं भी उन चीजों को बोल पाता जो मेरे मन में आ रहे हैं विचार. यानी इतना व्यक्ति दुखी है कि वो बोल नहीं पा रहा है अपने शब्दों में, ठीक है, इसी को लिख रहे हैं कि and I would that my tongue could utter the thoughts that arise in me, कि जो मेरे मन में विचार आ रहे हैं काश मैं उनको बोल पाता. It means to say here that the poet is much sad. ओके, बहुत ज्यादा दुखी हैं. क्यों दुखी हैं? क्योंकि उनके मित्र की डेथ हो गई है, असमय मृत्यु हुई है, ठीक है. Oh, well for the fisherman's boy that he shouts with his sister at play. Oh, well for the sailor's lad that he sings in his boat on the bay. अब इनको देखकर क्या लग रहा है कि समुद्र किनारे पर एक सेलर है, फिशरमैन है, जिसका बेटा है, चिल्ला रहा है और अपनी बहन के साथ खेल रहा है. कहने का मतलब है कि सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसे चल रहा है, लेकिन सिर्फ इनको वहां पे एक्साइटमेंट नहीं फील रहा. ये केवल अपने आप में दुखी है. क्यों? क्योंकि इनकी दोस्त की मृत्यु हो गई है. सो वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय, मछुआरे के लड़के के लिए कि सब कुछ अच्छा है. दैट ही शाउट्स विथ हिज सिस्टर एट प्ले, मतलब अपनी सिस्टर के साथ खेल रहा है. आगे क्या कह रहे हैं? ओ वेल फॉर द सेलर्स लैड दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे. ठीक है, कि जो मछुआरे का लड़का है वो अपनी बहन के साथ खेल रहा है, जो सेलर का लड़का है, जो नाविक का लड़का है, वो गाना गा रहा है बोट में. एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल. स्टेटली शिप का मतलब है जो समुद्र में शिप, जो बड़े बड़े जहाज हैं, वो भी अपने अपने हेवन मीन्स जो उनका पोर्ट है, सी पोर्ट, हेवन HAVN है, हेवन मतलब सी पोर्ट, कि वो भी अपने अपने पोर्ट की तरफ जा रहे हैं. कहने का मतलब है कि सब कुछ वहां पे वैसे ही चल रहा जैसे पहले चल रहा था. ठीक है, इनकी क्या उम्मीद थी कि जैसे ये दुखी हैं सब कुछ रुक करके इनके दुख में सब शामिल हो जाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे. ये केवल अकेले दुखी है. यानी टोन इज मोनोटोनस हियर. ठीक है, टोन इज मोनोटोनस. सो कह रहे हैं एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल, मतलब पहाड़ियों के नीचे जो पोर्ट बना है उधर शिप अपनी जा रहे हैं. बट ओ फॉर द टच ऑफ ए वैनिस्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ ए वॉइस दैट इज स्टिल
break, break, break at the foot of thy crags, O sea. But the never tender grace of a day that is dead will never come back to me. कह रहे हैं बट ओ फॉर द टच ऑफ ए वेनिस्ड हैंड. वेनिस्ड हैंड, वेनिस्ड में, वेनिस्ड मतलब होता है जो चीज खत्म हो गई हो. कि टच, ओ फॉर द टच ऑफ ए वेनिस्ड हैंड, यानी वो टच जो एक वेनिस्ड हैंड के लिए था, या वेनिस्ड हैंड के लिए टच. एंड द साउंड ऑफ ए वॉइस दैट इज स्टिल. दैट इज स्टिल मतलब जो अब नहीं है, सब कुछ खत्म, मतलब रुक चुका है. यानी जो वेनिस्ड हैंड है, यानी जो उनका मित्र का डेथ हो चुका है, तो अब वो यहाँ पर नहीं है और ना उसकी आवाज सुनाई दे रही है. अब इसमें दुखी होकर क्या कह रहे हैं कि ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक एट द फुट दाई क्रैग्स, ओ सी. क्रैग मतलब है जो पत्थर है वहां पे, ठीक है. वो पत्थर जो थोड़ा शार्प होते हैं, नुकीले पत्थर, उनको क्रैग्स कहेंगे. कि तुम भी अपना लहरें इस पे टकराओ. बट द टेंडर ग्रेस ऑफ ए डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी. कहना ये सुनहला दिन जो हो सकता था, लेकिन चूंकि मेरे मित्र की डेथ हो गई है, तो ऐसा वो दिन कभी नहीं आएगा कि वो भी इस दिन को एहसास कर सके या देख सके. कहने का मतलब है इज नॉट फीलिंग एनी काइंड ऑफ एंजॉयमेंट और एक्साइटमेंट एट दिस बे ऑफ सी, बिकॉज हिज फ्रेंड इज डायड. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम. पोएम बहुत शॉर्ट में है. ओके